Good morning, all of you. Today we started third semester company law. It is very important paper for this semester, and I think that all of you have to be understand it. I teach you this paper. There are 5 sections in this paper. This paper is vital role for your company affairs and in job of company era. I think that when you have completed your LLB, then by completing this LLB, this paper is very useful for your company law area, company law board, in bank, or you can say the public and private sector. Today I taught you the syllabus from the beginning, and you have to listen the syllabus very seriously. First unit number 1, company. Company, need of company, for development, definition, kind of company, public and private company, limited and unlimited company, government company, holding and subsidiary company. Distinction between company and corporation, company and partnership, and other associations of persons, formation of company, registration and incorporation, theory of corporate personality. First of all, unit first. Company, need of company, for development, definition, kinds of company, public, and private company. Public and private company. Unit first, company, need of company, for development, definition, kinds of company, kinds of company, public and private company. I think that it is very much important for your syllabus also and for your exam also. And today is my first class. I have taught you this topic from today, and today I taught you from the beginning, and I think that you understand it, and you have to listen this video each and every day. I have taken the classes fully and with my full capacity and my full mechanism. In unit first, the first portion which I have written, then after the second portion is distinction
association between company and corporation and corporation company and partnership and other association write it down. I have explained this after written these things, this syllabus. Incorporation, theory of corporate personality, theory of corporate personality, theory of corporate personality. These things which I have written, it is in unit first. You have to read and write all those things. Basically, I have taught you all these things with all classifications and clarifications, and the book which I have preferred to you. Which I have preferred to you that is the best book on company law. A book which I have referred to you, that is best book on company law. Dr. Avtar. You have to buy this book at first in Hindi or English. This book is valuable asset in nowadays for the subject of company law. By this book, you have to borrow the knowledge of company law and all those things which are amended under the government of India in new amendment. And there are so many books available in market. Whichever you like, you can buy. But in my suggestion, in my proposition, in my thinking, I have read this book. Dr. Avtar Singh book is the best book in this subject, and I have today clarified the things in Hindi, the unit 1, the topic which I have written. अब देखिए, आपको बताना है यूनिट 1 में क्या पढ़ना है. कंपनी, नीड ऑफ कंपनी, कंपनी की आवश्यकता क्या है? कंपनी की आवश्यकता. जैसे देश में हर चीज़ की आवश्यकता है, उसी तरह कंपनी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है. किसकी?
देश में, देश को चलाने में, संसाधन को चलाने में, देश के नागरिकों को जीविकापार्जन देने में, उनको रोजी रोटी देने में। अगर आप इन संसाधनों को पूर्ण रूप से नागरिकों को प्रदान कर सकते हैं, राज्य और देश को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं, तो कंपनी का होना अति आवश्यक है। अगर कंपनी है तो विकास है, अगर कंपनी नहीं है तो कल कारखाने नहीं हैं तो विकास नहीं है। डेवलपमेंट, विकास पर बात हो रही है। किस पर बात हो रही है? विकास पर। कौन सा विकास? थ्रू द कंपनी एंड एसोसिएशन एंड फर्म, और यू कैन से द different trusts which have been established through the government of India. Those trusts are the survival for the people, by the people, to the people. अब देखिए, इसके द्वारा कंपनी जो है, कंपनी के थ्रू हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल जुड़ा होता है। पहला एक। दूसरा, कंपनी हमारे उन युवाओं, उन युवकों को नौकरी देता है जो आज हमारे अन्य सेक्टरों में उनकी उतनी बड़ी जगह नहीं बन पाती। शिक्षा का क्षेत्र हो, आप देखेंगे, और अन्य क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, सारे जगहों पर आज स्थिति ये बनी हुई है कि सबको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इंडस्ट्री इज ए की पॉइंट बाय व्हिच द स्टेट can endeavor its position and its states can endeavor the right direction to the people by which they can get the bread and butter, by which they can get the bread and butter. आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में कार्य करने वाले डायरेक्टर, उसके अन्य मेंबर और अन्य कर्मचारी, कंपनी के अन्य भी छोटे से बड़े कर्मचारी जब कार्य करते हैं तो कंपनी में उनका एक बड़ी हिस्सेदारी होती है, शेयर होल्डर्स, और उस हिस्सेदारी से वह देश को, समाज को बहुत कुछ देते हैं। आपको पता होना चाहिए इस देश में कुछ ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो देश को बहुत कुछ दे रहे हैं। प्रेमजी रिजवी, जो देश के सबसे बड़े, विश्व के बड़े धनी हैं, 60% का दान करते हैं, अपनी टोटल कमाई का 60% दान करते हैं। प्रेमजी रिजवी, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, ये सब लोग देश के लिए आपात में, परिस्थितियों में, कोरोना में, एनी इमरजेंसी में ये देश को देते हैं, ये देश से लेते नहीं हैं। हमारे देश को देने का काम इन्हीं के द्वारा होता है। देश के संसाधन को, देश की स्थितियों को मजबूत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनको अन्य तरीके से हमारे अन्य लोग परिभाषित करते हैं, और परिभाषित करने वाले कंपनी को जानते नहीं कंपनी है क्या। अब आगे बताता हूँ डिफिनेशन ऑफ कंपनी। व्हाट इज कंपनी? कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच इज मीन्स कम एंड पेनिस, व्हिच इट मीन्स कम एंड पेनिस। कंपनी मीन्स एक साथ कई लोग इकट्ठा होकर जब कोई कारोबार करते हैं तो उसे कंपनी कहते हैं, और एक साथ इकट्ठा होने पर जो कारोबार का स्वरूप तैयार होता है, जो ढांचा तैयार होता है, जिसमें डिवेंचर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ये सब की बड़ी भूमिका होती है। इन सब की बड़ी भूमिका के तहत कंपनी का एक स्वरूप तैयार होता है, और कंपनी अपने प्रभुत्व को धारण करती है, और कंपनी जनजीवन को बहुत बड़ा लाभ देती है। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल बनता होगा, बनना चाहिए और ज़रूरी भी है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा, अभी आपको छोटे हुए जा रहा हूं। पब्लिक कंपनी सबके लिए होती है, प्राइवेट कंपनी इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल के लिए होती है। इससे ज़्यादा आज नहीं बताऊंगा। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड कंपनी, आपने देखा होगा, लिमिटेड और अनलिमिटेड, इसका भी मतलब लगभग वही होता है। कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, जिसका आधिपत्य सरकार पर होता है। क्वीन एलिजाबेथ जब देश में थी, 1800 में कंपनी आई, उस समय से भी कंपनी का स्वरूप हमारे सामने आया।
एक्ट बनते गए, कंपनियों में संशोधन होते गए, कंपनी का स्वरूप बदलता गया, कंपनी चलती रही, कंपनी आती रही और कंपनियां जाती रही, नए रूल्स आते गए, पुराने रूल जाते रहे। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी उसी कंपनी को कहते हैं जो कंपनी चलती है और उसी के साथ संबंधित अन्य कंपनियां चलती हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड कॉरपोरेशन, आपको अंतर बताएंगे कंपनी और कॉरपोरेशन में, कंपनी एंड पार्टनरशिप में, कंपनी और भागीदारी में, एंड अदर एसोसिएशंस में। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का गठन कैसे होता है, वह कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन सी धारा है जिससे कंपनी को गठित किया जाता है। रजिस्ट्रेशन इन कॉरपोरेशन, थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आपको बता दें 2 मिनट में। थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब ये होता है उद्योग जगत का वह शक्ति जो कंपनी को संचालन करने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उन महत्वपूर्ण भूमिका से कंपनी संचालित होती है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटियाँ वो होती हैं जो देश को, समाज को और गरीब वर्ग के लिए काम करती हैं। टुडे इज द फर्स्ट यूनिट आई हैव स्टार्टेड, I have given the syllabus, I have given the topic, and tomorrow, from the day of tomorrow, I have started from beginning. You have to don't miss the lecture, otherwise you have not get the class. Thank you.